So today we are starting a new book, Galatians, आज हम एक नया पुस्तक का अध्ययन शुरू कर रहे हैं and we'll be doing from chapter 1, verses 1 to 10. और पहला अध्याय का पहले से 10वें वचन तक हम अध्ययन करेंगे। So this book of Galatians, this was given to the churches in Galatia, ये जो गलातियों का पत्र है वो गलाती के कलीसियाओं के लिए लिखा गया था। Anybody knows where Galatia is in the world? Where this place is? Anybody knows? कोई जानता है कि गलातिया ये जगह किस जगह में इस दुनिया में कहाँ स्थित है? Just whatever is your understanding, guessing, you can do that. Yeah, anybody? Where is Galatia? Is it somewhere by Greece, brother? Yeah, very good. It's say Nigel is close to that. It's close to that. तुर्की वो जो है यूनान देश के समीप है। It is at the place present Turkey. आज का जो तुर्की देश है उसमें स्थित है। So at that time it was called Asia. उस समय वो जगह को एशिया कहते थे। So we'll just see a map for us to. Sorry. Can you see this map? क्या आप इस नक्शे को देख सकते हो? Yes or no? Yes, brother. Okay. Yes, brother. So this is the map of the journey of the Apostle Paul. ये जो है प्रेरित पौलुस के यात्रा को दर्शाता है ये नक्शा। You see this red and blue lines are all his journey in different times journeys. ये लाल और जो नीला रेखाएं आप देख सकते हैं ये सब प्रेरित पौलुस के जो यात्रा को दर्शाता है। So this area, I'm putting the cursor, this area is Turkey. तो ये जो ब्रदर दिखा रहे हैं वो जगह है तुर्की। And this is Galatia. This green one is Galatia. और जो हरे रंग का आप जगह देख रहे हैं वो गलातिया है। So there are cities in Galatia called Iconium, Lystra, Derbe, Antioch. So these we have read in the Acts and all. So these are the cities of Galatia. ये जो वहाँ कुछ शहर हैं गलेशिया में, गलातिया में, जिसके बारे में आपने जो है प्रेरित के पुस्तक में पढ़ा भी होगा। अंतियोक है, आइकोनियम है, लाइस्ट्रा है, फिर डर्ब है। So the 7 churches of the Revelation are also in Turkey. और जो 7 कलीसियाओं के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वो भी तुर्की में ही स्थित था। Apostle Paul was born in which place? प्रेरित पौलुस का जन्म कहाँ हुआ था? Anybody? कोई बता सकता है? हाँ? Tarsus. हाँ, वो टार्सस में उनका जन्म हुआ था। I was surprised to know that Tarsus also is in Turkey. और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि टार्सस भी जो है तुर्की ही में है। So he was born in Tarsus of Cilicia. His parents were Jews, but they were Roman citizens. तो जो उनका जन्म टार्सस जो सिलिसिया जगह जो तुर्की में है वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके जो माता पिता थे वो यहूदी थे, लेकिन उनको जो था जो रोमी जो सिटीजनशिप उन्हें मिला था।
So this is Greece. The Nigel was saying about Greece. So in Greece you have Corinth, then you have Thessalonica, Philippi. All these are in Greece. और जो ब्रदर नाइजिल ने बताया वो ग्रीस, हिंदी में उस जगह को हम यूनान कहते हैं, और वहाँ यूनान में ही कोरिंथ और फिलिप्पी, थेसलोनिका, फिलिपी, ये जगह सब यूनान में है. And very close to that is Italy, where Rome is there. और इटली जहाँ रोम का प्रदेश है. And here is Jerusalem. From here he has traveled all other places. और जो यरूशलेम है वो भी आप देख सकते हैं नक्शे में, यहाँ से इतना दूर उन्होंने यात्रा किया. So all these places were Gentile believers. तो इन सब जगहों में जो गैर यहूदी विश्वासी लोग रहते थे, He was an apostle to the Gentiles. और वो एक गैर यहूदियों के लिए वो एक प्रेरित था. So all across this place, Greece, Turkey, Rome, he preached the gospel and many Gentiles got converted. और इन सब जगहों में जो है प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार बताया और बहुत सारे गैर यहूदी लोग विश्वास में आए. So now the apostle Paul preached the gospel to the regions of Galatia. और प्रेरित पौलुस ने जो था गलातिया के देश में उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया. And you'll find that references about him passing through Galatia in Acts in the book of Acts. और प्रेरित के पुस्तक में हम देख सकते हैं कि उधर लिखा गया है कि प्रेरित पौलुस गलातिया से होकर गुजरा, ऐसे वचन हम देख सकते हैं. And the first time he went to Galatia, he was not well at that time. और जब पहली बार वो गलाती में गए तब वो बीमार थे. Acts chapter 18 verse 23. हम प्रेरितों का पुस्तक 18 अध्याय में उसके बारे में पढ़ सकते हैं. 23. और उसका 23वां वचन. So because of the sickness, he was in Galatia the first time. तो उधर 18 का 23. प्रेरित 18:23. उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर. sorry. Galatians 4:13. Yes. गलातिया 4 का 13. पर तुम जानते हो कि पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया. So he preached the first time there, and they received him very, very well. और उन्होंने उनका बहुत ही अच्छी तरह उनको स्वीकार किया. And received the gospel from him. और प्रेरित पौलुस से उन्होंने सुसमाचार भी स्वीकार किया. Brothers and sisters, the apostle Paul, when he preached the gospel, he preached not some gospel which came from his mind. जब प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया तो उन्होंने ऐसे सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जो उनके मन से उनको कुछ ख्याल आया और उन्होंने वो बता दिया. He did not preach from mind, but he preached because of the revelation he received from God. उन्हें प्रकाशन मिला प्रभु से, इसीलिए उन्होंने वो सुसमाचार बताया. If we read Galatians chapter 1 verses 11 and 12, हम गलातियों का पहला अध्याय उसका 11 और 12 में पढ़ सकते हैं. He said, "For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me, is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ." हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला. So this gospel which he got a revelation from God, he preached, and these people were blessed.
और जब उन्होंने जो परमेश्वर से जो प्रकाशन मिला वो सुसमाचार का प्रचार किया तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को अनुग्रह मिला. He preached about the gospel of the grace of God, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में प्रचार किया justification by faith, और विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त होती है उसके बारे में, not by works. कार्यों से नहीं, कर्मों से नहीं. Yeah. But then after he left that place, लेकिन जब वो उधर से निकल गए, after some time, some other teachers came there to teach the believers there. कुछ ऐसे विश्वासी आए उधर उन्हें उपदेश देने के लिए, And these were most probably these Jewish believers. और वो यहूदी विश्वासी थे. And so they came and taught a different gospel. और वो वहां आकर एक दूसरा सुसमाचार उन्हें सिखाया. They were saying that circumcision and Mosaic law, some of Mosaic law is also needed plus faith in Christ. तो वो कहने लगे कि खतना जरूरी है और फिर जो मूसा के नियमों का पालन करना जरूरी है. यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करने से उद्धार नहीं मिलता है. So these believers, they started receiving this gospel, accepting this gospel. तो ये जो गलाती के विश्वासी थे ये इसे स्वीकार करने लगे. So the reason for the Apostle Paul to write this letter is so that they will be brought back to the truth. तो प्रेरित पौलुस ने जिस कारण ये गलातियों का पत्र लिखा वो इसलिए था कि वो वापस जो सच्ची सुसमाचार है वापस लौट आए. So now these false teachers, they also raised a question about Paul, that like what authority he has got. तो ये जो गलत उपदेश देने वाले उपदेशक थे, इन्होंने प्रेरित पौलुस के ऊपर भी उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि क्या ये जो सिखा रहा है क्या ये ठीक है, ये कौन है. So now the verse 1 we read, Paul is writing, because of all these things Paul is writing, और Paul and इस कारण प्रेरित पौलुस ने ये जो पत्र लिखा गलाती के कलीसिया को. और पहला वचन, so Paul an apostle, it says, not sent from men, not through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है. So Paul wanted to say that I am an apostle, not because some men ordained me. प्रेरित पौलुस ये कहना चाहते थे कि मैं एक प्रेरित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मनुष्य ने मुझे नियुक्त किया. See, normally the elders and all are ordained by another elder. क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं जो उन्हें जो है कोई दूसरा बुजुर्ग उन्हें नियुक्त करता है कलीसिया में. But in the case of Paul, there was nobody who ordained him as for the service. लेकिन प्रेरित पौलुस को किसी ने भी ऐसा अगुवे बनने के लिए उन्हें चुना नहीं था. He was commissioned by Jesus Christ himself. उनको यीशु मसीह ने जो चुन लिया था, नियुक्त किया था. So he says that I am Paul an apostle. He says that to make the people know that about how is the authority that he got is from God. तो वो समझाना चाहते थे कि जो अधिकार उन्हें मिला है वो परमेश्वर से ही उन्हें मिला है. So verse 2 says, and all the brethren who are with me to the churches of Galatia. और दूसरे वचन में कहते हैं और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातियों की कलीसियों के नाम. So this apostle was writing this letter, and he is not just writing that I am writing this letter. वो ऐसे नहीं लिख रहा है कि मैंने लिखा है ये पत्र. But he's saying, and all the brethren who are with me. और वो कहते हैं और सारे भाइयों के साथ. This shows his humility.
ये उनकी नम्रता दर्शाती है। And the brethren who were with him were people who received his teaching. और जो भाई उन लोगों के प्रेरित पौलुस के साथ थे वो ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके उपदेश को स्वीकार किया। And this letter was to the churches of Galatia. और ये जो पत्र लिखा गया है वो गलातिया की कलीसियाओं के नाम लिखा So है। there were different churches in Galatia, और वहाँ बहुत सारे कलीसियाएं थी and all of them probably got the wrong teaching. और इन सब जगह में वो गलत जो उपदेश दिए गए थे। So the Apostle Paul wanted to correct all this. और इन सब को वो सही करना चाहते थे। Then he says in verse 3, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. और तीसरे वचन में परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। So this is the way that he always greets and blesses the people. हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है इसी तरह हर समय जब वो पत्र लिखते हैं तो इसी तरह लोगों को स्वागत करते हैं। So this is what he wishes for the people. और यही वो चाहते हैं लोगों के लिए। He says grace. Grace is God's goodness and his work in us. तो यहाँ वो अनुग्रह के बारे में कहते हैं। अनुग्रह जो है परमेश्वर का जो आशीष हमारे ऊपर है और जो कार्य वो हमारे अंदर करते हैं उसके बारे में कहती है। And peace is that inward comfort which is needed in all of us. और शांति वो बात है जो हम हर एक के अंदर जो एक शांति और जो हमें परमेश्वर की ओर से तसल्ली मिलती है उसके बारे में है। And both these grace and peace comes from God the Father and the Lord Jesus Christ. और शांति और अनुग्रह ये दोनों बातें परमेश्वर और प्रभु यीशु से हमें प्राप्त होता है। So this is also what we can wish for each one of us. We also can wish and pray that grace and peace will be with each one of us when we meet and when we interact with each other. तो ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसे ही एक दूसरे के लिए एक आशा होनी चाहिए। So Jesus said when he sent the disciples, he says when you go to a house, if the man of peace is there, then let your blessing of peace be in that house. तो यीशु मसीह ने कहा जब जो शिष्य थे उनको उन्होंने सुसमाचार जो है प्रचार करने के लिए उन्हें भेजा तो उन्होंने कहा अगर किसी घर में जाते हो और वहाँ शांति का मनुष्य है तो वहाँ अपना अनुग्रह देकर आना। So peace is one thing which is lacking in so many individuals and homes. और शांति एक ऐसी बात है जो कई जो परिवारों में और व्यक्तियों में वो नष्ट हो गया है। So we can pray and wish and bless that the grace and peace be in the homes and individuals. तो हम ऐसा प्रार्थना करें और आशा करें कि लोगों के जीवन में और उनके परिवारों में शांति बनाए रखे। Verse 4, who gave himself for our sins that he might deliver us out of this present evil age according to the will of our God and Father. Yeah. उसी ने चौथा वचन उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। So Jesus gave himself for us. तो यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। He voluntarily said that I will go to this earth and pay the price for the sins of the people. किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं किया, उन्होंने अपने आप खुद से ही उन्होंने ये कबूल किया कि मैं धरती में जाकर और पापों के लिए मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूँ।
Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and delivered himself up for me. और गलातियों 2 का 20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, And so that he might deliver us out of this present evil age. कि वो हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, This or the evil present evil world. या इस वर्तमान बुरे संसार से। This world has been corrupted because of sin, ये जो संसार जिसमें हम जी रहे हैं ये भ्रष्ट हो गया है पाप के कारण, and the ruler of this world is, the word of God says, ruler of the world is the devil, और इस संसार का जो राजा है वो शैतान है, वचन कहता है। and the God has delivered us from the anger of God towards this world and the sin. और परमेश्वर के क्रोध जो इस संसार के प्रति है और पाप के प्रति है, उससे उन्होंने हमें छुड़ाया है। See, God is when people sin, it is not that God is just tolerating everything and just it's okay, nothing will happen. ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहते हैं कि जाने दो, ये लोग गलती कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं कहते। There is for every sin there is the anger of God. हर एक पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध उनके अंदर से निकलता है। But what Jesus did was he died for us so that the anger of God can be taken away from us. तो लेकिन यीशु मसीह जो हैं उन्होंने हमारे लिए वो पाप उठाया कि हमारे ऊपर से वो क्रोध हट जाए। So Jesus took the wrath of God upon himself. यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, Because God has to punish sin. क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वो पाप के ऊपर दंड देना चाहता है। And when we believe in what he has done, then we are saved from the wrath of God. और जब हम जो कार्य यीशु मसीह ने किया है उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस दंड से बच जाते हैं। But the world is not saved from the wrath of God. लेकिन ये संसार जो है इस परमेश्वर के क्रोध से बचा नहीं है। In Revelations, we read that towards the end of the chapter, the wrath of God is completed when he punishes the world. हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो उसके अंत के अध्यायों में हम देख सकते हैं कि ये कहा गया है कि परमेश्वर का क्रोध का समाप्ति हो गया है। But God has delivered us from this, from the wrath and from this evil world. परमेश्वर ने हमें इस क्रोध से हमें छुड़ाया है। Jesus said that we are of the world, we are in the world but not of the world. यीशु मसीह ने कहा कि हम इस दुनिया में जीते हैं लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। By the world we mean the spirit of the world. The spirit of the world is contrary to the ways of God. तो इसका ये मतलब है कि जो आत्मा इस संसार में कार्य कर रही है वो जो है परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध है। So it is. So that is the spirit. The spirit of the world is what we have to be free from. तो इस आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध है इससे हमें मुक्त होना चाहिए। And that Jesus has come to deliver us out of that. और इससे मुक्त करने के लिए यीशु मसीह आए हैं। Okay, and then verse 5 says, to whom be glory forever and ever. और 5वां वचन, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। Because of the greatness of God, because of his goodness towards us, we give him glory. परमेश्वर की महानता और उनकी भलाई के कारण हम उन्हें महिमा देते हैं। Now we come to an important verse where it says in verse 6, I am amazed that you are so quickly deserting him
who called you by the grace of Christ for a different gospel. और छठवां वचन, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के समाचार की ओर झुकने लगे। See, he came to know that these people turned to a false gospel. वो उनको ऐसे पता चल गया कि वो जो है इस सुसमाचार से मुड़ गए हैं। And so he doesn't speak with anger, but he speaks with gentleness. और वो सौम्यता के साथ वो कहते हैं, वो He said- क्रोध से नहीं कहते। Yeah, he says, I'm surprised and amazed that so quickly. That means after he left, in a very short time, maybe 1 or 2 years, the false gospel came. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, और इसका ये मतलब है कि 1-2 साल में ही वो जो गलाती के जो विश्वासी थे वो उस सुसमाचार से फिर गए। And he said that you're quickly moving away from not me but from him. तो उन्होंने कहा कि जल्द ही तुमने जो मेरे से नहीं, लेकिन मुझसे नहीं, लेकिन जो सुसमाचार है उससे तुमने मुंह मोड़ लिया। He was not interested in them following his teaching. उनकी ये इच्छा नहीं थी कि वो उनके ही उपदेशों को माने। Meaning, he was not trying to attach them to himself. वो ये नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ उनका लगाव हो जाए। He says that when we go to a false gospel, we go away from God himself. तो वो समझाते हैं कि जब हम एक गलत सुसमाचार में चले जाते हैं तो हम परमेश्वर से ही दूर जा रहे हैं। That's why he said that in 2 Corinthians he says, in 2 Corinthians 11:3 he says, I'm afraid lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. इसीलिए दूसरे कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 3 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। Brothers and sisters, the true gospel always connects us to God, to Jesus Christ. जो सच्चा सुसमाचार है वो हमें जो है यीशु मसीह के साथ एक बंधन में ले आता है। It's not a devotion to any man. और किसी आदमी या मनुष्य के प्रति हमारा लगाव नहीं It's होता a है। devotion to simple devotion to Jesus Christ. जो हमारी लगाव है वो सिर्फ यीशु मसीह की ओर है। But when some false teaching comes, then that devotion to Christ goes off. जब कोई गलत जो उपदेश आ जाते हैं तो हमारी लगाव जो है मनुष्य के साथ हो जाता है। Brothers and sisters, we have to preserve this simple and pure devotion to Christ all the days of our life. और जो एक सादगी है जो सुसमाचार में और एक पवित्रता है उसे हमें अंत तक बनाए रखना है। And that comes by following the gospel which God has given to us. और वो तभी आएगा जब हम इस सुसमाचार के पीछे पूरे दिल से चलेंगे। That is the word of God which we have got. वो है परमेश्वर का पवित्र वचन, Not the teachings of man which comes from time to time. ऐसे उपदेश नहीं जो मनुष्य की ओर से आता है। So he says, you're very quickly you're going away from the gospel, from the grace of Christ to a different gospel. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। So then he says in verse 7, which really is not another, only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. और 7वां वचन, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। So gospel means good news. सुसमाचार का मतलब है सुसमाचार, अच्छी समाचार। God has got good news for us.
परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का समाचार दिया है. The good news is that we become more and more better in our lives in every way. और सुसमाचार ये है कि हम अपने ही में जो है दिन ब दिन हम प्रगति करते रहें और भी अच्छे हो जाएं. So these teachers were teaching a false gospel. He says that is not a gospel itself. तो ये जो गलत सुसमाचार सिखा रहे थे, प्रेरित पौलुस कहते हैं ये तो सुसमाचार ही नहीं है. They were saying that you must be circumcised. वो कह रहे थे कि तुम्हें खतना करना पड़ेगा. Now, circumcision was for the Jewish people. जो खतना था वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए था. That is a covenant which God made with Abraham for the Jews, for the descendants of the physical descendants of Abraham. परमेश्वर ने ये जो वाचा बनाई थी वो सिर्फ अब्राहम के जो संतान थे इस एक शारीरिक रूप में, उनके लिए परमेश्वर ने वो वाचा बनाया था. But not for the spiritual descendants of Abraham. लेकिन जो आत्मिक जो उनके वंश है उनके लिए नहीं. That is clearly given in the word of God. वो साफ साफ बताया गया है वचन में. But as in Acts chapter 15, when the people were saying that circumcision and all the law of Moses is to be observed, and they were disturbing the Gentile believers, here in Galatia the same thing happened. तो हम देखते हैं कि जैसे प्रेरितों के 15वें अध्याय में कहा गया है कि जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि खतना करना पड़ेगा और मूसा के जो नियम हैं उनका पालन करना पड़ेगा, ऐसे कह के वो जो गलाती के विश्वासी थे उनको घबरा रहे थे. In one place, the Apostle Paul says, if you want to follow circumcision, then you have to keep all the other law also. तो प्रेरित पौलुस एक जगह में कहते हैं अगर तुम्हें खतना करना है तो इसका ये मतलब है कि सारे मूसा के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा. There were about more than 600 laws. और ऐसे 600 नियम थे. So this what they were being taught was not the gospel. जो उन्हें सिखाया जा रहा था वो सुसमाचार ही नहीं था. So now he is trying to implore, come back to the true gospel. वो उनसे मांग कर रहे हैं कि जो सच्चा सुसमाचार है उसके पास वापस आ जाओ. Not with anger or anything, but with gentleness. क्रोध से नहीं लेकिन सौम्यता से वो मांग रहे थे. Galatians 6:1 says, और गलातियों का 6वां अध्याय और उसका पहला वचन, Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself lest you be tempted. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपने भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो. So we'll read verse 8 now, but now he says very strongly, but even though we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to which we have preached, let him be accursed. 8वां वचन, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो. So he knew that the gospel that he preached was not from his own mind and his own imagination, but from the revelation that he got from God. वो खुद प्रेरित पौलुस जानते थे कि जो सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया वो अपने ही मन से बनाया हुआ नहीं या उनके कल्पनाओं के से नहीं रचा गया था, लेकिन परमेश्वर ने ही उन्हें प्रकाशन दिया था. So he says that even if I preach to you another gospel than what you have received, or anybody else, then let that person be cursed. तो इसीलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अगर मैं या और कोई भी व्यक्ति कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है. Verse 9 says, as we have said before, again I say, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you have received, let him be accursed. He repeats this. तो वो फिर से दोहराकर 9वें वचन में कहता है, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ
कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। Because it says in Second Corinthians that even Satan disguises himself as an angel of light. क्योंकि हम कोरिन्थियों के पत्र में देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि शैतान भी अपने आप को जो है एक दूत के समान, ज्योति के दूत के समान, अपने आप को स्वर्ग दूत के समान वो अपने आप को दर्शाता है। So brothers and sisters, the way for us to be free from deception is for us to love God with all our heart, ऐसे भड़काऊ बातों से अगर बच के रहना है तो अगर हम परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करेंगे तभी ये हो सकता है। then when we read the word of God, we know the word of God, और जब हम वचन को पढ़ेंगे और उसकी समझ हम में है तभी हम बच के रह सकते हैं we obey the word of God, और वचन का पालन करते हैं, then we get the right spirit and then we'll be able to discern which is not correct. तो जो सच्ची आत्मा है उसके हम सहभागी होंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सी आत्मा गलत है। If we don't do that, then we will think that anybody who speaks the name Jesus Christ, they are speaking the gospel. नहीं तो हम ऐसे विश्वास करेंगे कि जो कोई भी यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार करता है वो सच्चा सुसमाचार सिखा रहा है। And we don't know the word of God, so we believe whatever people are saying. तो क्योंकि हम वचन नहीं जानते तो जो भी लोग कहते हैं हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। So brothers and sisters, let us make it sure that we will know the word of God. How to know the word of God? Daily read little bit. As you read, that is enough. You will know the word of God. हमें जो है वचन हम कैसे जानेंगे? रोज जो है हमें थोड़ा थोड़ा जो है प्रभु का वचन हमें रोज पढ़ना चाहिए। And obey whatever we know. और जो भी हम जानते हैं उसका हम पालन करें। Then we will be kept from deception. तो हम भड़काऊ बातों से हम बच जाएंगे। So the last verse we read today is 10. From now on, और 10वां वचन, for am I now seeking the favor of men or of God? Am I striving to please men? If I was still trying to चाहता हूँ, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। See, in preaching the gospel, it is Paul did not want to do so that people would be pleased. जब प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो वो इसीलिए नहीं कर रहे थे कि वो मनुष्यों को खुश करे। Not to get a good approval from people saying that Apostle Paul is preaching some good things. लोगों की सहमति मिलने के लिए नहीं प्रचार किया उन्होंने कि लोग बहुत ही अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ये बात सुनने के लिए नहीं। His aim was that they to bring an obedience in their lives to God. उनका लक्ष्य ये था कि वो जो हैं जो परमेश्वर के नियमों का पालन करें। That he says in another place that I am in labor with you so that Christ will be formed in you. एक जगह वो कहते हैं कि मैं ऐसे प्रयत्न कर रहा हूँ कि यीशु मसीह आप में यीशु मसीह का स्वरूप आप में बन जाए। He did not preach the gospel to get the affection that people would love him more. उन्होंने इसीलिए प्रचार नहीं किया कि लोग उनसे ज्यादा प्रेम करें। Or he did not preach something so that to not to offend people. और लोगों को वो ठुकराए ना जाए इसलिए उन्होंने प्रचार नहीं किया। So his concern was the approval of God. उनकी जो इच्छा थी वो थी कि परमेश्वर से उन्हें सहमति मिले। So brothers and sisters, all of us who share the word of God must have the same attitude. यही जो हमारे इस सब की जो भी वचन बांटते हैं उनका यही उद्देश्य से हमें करना चाहिए। Jesus said you cannot serve two masters. यीशु ने कहा कि हम दो जो
लोगों की सेवा नहीं कर सकते। If people are one master, we cannot serve the people and God. हम लोगों का और परमेश्वर दोनों का सेवा नहीं कर सकते। Yeah, so we have to please God only. हमें सिर्फ परमेश्वर की सहमति और उनका जो अनुग्रह चाहिए। Then we become a bond servant of Christ. फिर हम परमेश्वर के जो एक सच्चे दास बन जाते हैं। We are trying to please men. We have stopped becoming the bond servant of Christ. और अगर हम मनुष्य की प्रीति चाहते हैं तो हम परमेश्वर के दास नहीं रहे। But then there is one verse which balances out this in a good way. और एक वचन है जो इन सब बातों को संतुलन में लेकर आता है। We'll read two more verses. That's all now. तो ऐसे वचन हैं। 1 Thessalonians 2:4. पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक Again, it's very दूसरा similar. अध्याय और चौथा वचन। So 1 Thessalonians 2:4 says, "So we speak not as pleasing men, but God who examines our hearts." पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। That doesn't mean that we will keep on hurting people or saying some things to hurt people left and right. तो इसका ये मतलब नहीं हम लोगों के प्रति कुछ भी कहते रहेंगे, लोगों को चोट पहुंचे उसके कारण। 1 Corinthians 10:33 says, और पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 10:33 says, "Just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved." जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। So that is the balance part of it. That is, first we must not please men, but must please God. यही है वो संतुलन की बात जो मैंने बताया कि हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। First Corinthians 10:33 says that I please men for the sake of saving them. और पहला कुरिन्थी 10:33 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं मनुष्य को इसीलिए प्रसन्न करता हूँ कि वो उद्धार पाएं। So we will end today, and may God help us to understand this book and apply it to our lives. जो परमेश्वर हमें सहायता करे कि इस पत्र को हम समझ पाएं और अपने ही जीवन में इसे लागू भी करें। Chapter 1, verse 6. Yeah. जैसे हमने I'm amazed that you are quickly deserting him who called you. तो हम जैसे हमने गलातियों के पहले अध्याय का 6वें वचन में सुना कि तुम जल्दी फिर कर उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर छोड़ दिया है तुमने। As we heard, the most important part in our Christian life is that simple and pure devotion to Jesus. और जैसे हमने सुना कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्रिस्ती जीवन में ये है कि हम सादगी और पवित्रता बनाए रखें। In a grain, if the kernel is not there, it's just a chaff. अगर एक गेहूं के दाने में जो वो दाना ही नहीं है उसमें और सिर्फ वो छिलका ही है, तो वो सिर्फ वो खाली रह जाता है। So, the most important part in a grain is kernel. So, the same way, the most important part of Christianity, walking with Jesus, is that simple and pure devotion to Jesus. और जिस प्रकार गेहूं का जो दाना रहता है उसमें वो दाना ही सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो खाली रह जाता है, वैसे ही सादगी और पवित्रता के साथ अगर हम यीशु के साथ नहीं चलेंगे तो वो खालीपन पैदा करेगा।
In the Garden of Eden, Adam and Eve were walking with Jesus. हम देखते हैं कि आदम और हवा यीशु मसीह के साथ उस जो बगीचे में चल रहे थे. And that is the thing that made devil extremely unhappy. तो यही बात थी जिसके कारण शैतान बहुत असंतुष्ट था. And he succeeded in separating Adam and Eve from Jesus. और वो सफल हो गया आदम और हवा को यीशु मसीह से दूर करने में. So in the same way, devil is also extremely unhappy when he sees any of God's children walking with him. ऐसे ही शैतान जो है अप्रसन्न हो जाता है जब वो देखता है कि कोई भी विश्वासी यीशु मसीह के साथ चल रहा है. His main aim is to divert them from that simple devotion to Jesus. और उनकी जो शैतान की जो लक्ष्य यही है कि जो सादगी और पवित्रता के साथ वो यीशु के साथ चल रहे हैं उससे उन्हें भटका दे. We heard that two masters, one can be man and the other can be God also. हमने सुना कि दो ऐसे जो हैं मास्टर हो सकते हैं, एक परमेश्वर हो सकता है और एक शैतान. And verse 10 clearly says that if we try to please men, I cannot be a bond servant of Christ. और हमने देखा कि अगर 10वें वचन में कि अगर हम मनुष्य को प्रसन्न करना चाहेंगे तो हम परमेश्वर के दास नहीं रहे. So that is a battle that we have to fight all the days of our life. तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे हमें जूझते रहना है जब तक हम इस दुनिया में जी रहे हैं. It is part of what can be called as pride of life. तो ये वही बात है जो कहा गया है कि इस जीवन का घमंड. Bible says, fight the good fight of faith, lay hold of eternal life. तो वचन में कहा गया है कि जो अच्छी लड़ाई है उसे लड़ो और अनंत जीवन को पकड़े रखो. I want to do that in my own life. और मैं यही करना चाहता हूँ अपने जीवन में भी. When I was reading this verse from Galatians chapter 1 and verse 4, which says that who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father. और जैसा कि मैं इस वचन को पढ़ रही थी गलातियों के अध्याय 1 और वचन 4 को, कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया. To save us from the present evil age, to deliver us from the present evil age according to the will of, ताकि हमारे according to the will of our God and Father. परमेश्वर और बुरे संसार से छुड़ाए. Yeah, so what touched me was that the Lord not only wants to deliver us from our sins, but He also wants to deliver us from the present evil age. और इस वचन से मैं प्रोत्साहित होती हूँ कि ये वचन न केवल हमें इस विषय में बताता है कि यीशु हमें हमारे पापों से छुड़ाएंगे, परंतु उसके साथ ही वो इस हमें बुरे संसार से भी छुड़ाएंगे. Because it says it is the will of God, our God and Father. क्योंकि यहाँ पर यह वचन कहता है क्योंकि यह हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा है. So it is God's will that He wants to deliver us from this present evil age, and we see that this world that we are living in, we hear and we see so much of evil around us. और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस बुरे संसार से छुड़ाएंगे, वर्तमान समय से छुड़ाएंगे. और हम देखते हैं कि आसपास का हमारा जो संसार जिसमें हम सभी रहते हैं और जीते हैं, हम देखते हैं कितने सारे बुरी और दुष्टता की बातों को हम सुनते हैं. Yes, so it is God's will that He should deliver us from this also. So we need not fear
and we need not be discouraged when we see evil, increasing around us, and so much of evil that is multiplying around us. तो यह परमेश्वर की जो हमें इस संसार से भी छुड़ाना चाहते हैं। तो जब कभी हम इस संसार में होने वाली सारी बुरी और दुष्टता की बातों को जब हम सुनते और बढ़ते हुए पाते हैं, हम ना तो डरे, ना घबराएं और ना ही हम निराश हो जाएं, क्योंकि प्रभु हमें छुड़ाएगा। Yeah, so that is something that encouraged me, that it is God's will. While we are living in this world, He has saved us from our sins, but He also wants to deliver us from this present evil age. He knows that it is an evil world that we are living in, and He will deliver us. और जैसा कि हम पढ़ते हैं, यह परमेश्वर की इच्छा है जो हमें हमारे न केवल पापों से छुड़ाना चाहते हैं, परंतु इस बुरे वर्तमान संसार से भी छुड़ाना चाहते हैं। और प्रभु यह जानते हैं कि क्योंकि जिस संसार में अब हम रह रहे हैं, इस वर्तमान संसार में, यह कितना बुरा और दुष्टता से भरा हुआ है। Yeah, I thank God that He takes care of every need of ours. He is aware of what is happening around us, and sometimes we can feel that we are up against so much of there's so much of power of darkness and evil that is abounding in this world, but the Lord says that it is God's will to deliver us from that also. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैसे हम इस दुष्टता भरे संसार में हम जीते हैं, और हम देखते हैं कि बुराई और दुष्टता जो है बढ़ती जाती है, लेकिन यह प्रभु जो हमसे कह रहे हैं कि वह हमें इस बुरे संसार से छुड़ाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं और वो देखते हैं कि हम इन सारी दुष्टता की और बुरी बातों का सामना इस संसार में रहते हुए कर रहे हैं। Yeah, and it is God's will, it says. So God's will, He had ordained His will long ago, that is before the foundation of the world, and it is God's will also to deliver us from this also, from the present evil age also. और हम यहाँ पर प्रोत्साहित करते हुए पाते हैं इस वचन को कि प्रभु की इच्छा है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि यह जो संसार है वह वर्तमान वह बुरा है, और प्रभु जानते हैं कि इसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, हम इन सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, दुष्टता का सामना करते हैं, और ये प्रभु की इच्छा है जिससे उसने बहुत ही ज्यादा समय पहले पूर्वानुमान समय में आदि में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को ठहराया था कि वह हमें इस बुरे संसार से छुड़ाएगा। Yeah, when I see all evil around me, it's natural for us to have fear in us. Will we be able to stand against this, the influence of all that is around us? But we should remember that there is the power of the Holy Spirit, which is greater than any other power on this earth, and He will, with His help, we will be able to stand against all the evil, which seems to be powerful. But there is a power, not my own power, but the power of the Holy Spirit, which is greater than any power, any atomic power, any nuclear power. Greater than all this power is the power of the Holy Spirit, which will save me from this present evil age. और जब कभी मैं संसार में होने वाली दुष्टता और बुराई की बातों के विषय में जब सुनती हूँ, तो स्वाभाविक रूप से हम सभी के हृदय में भय समा जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु अपने वचन में हमसे प्रतिज्ञा करता है कि यह उसकी इच्छा है कि जो वो हमें इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाए, और वह उसके लिए हमें अपनी सहायता करने के लिए अपने पवित्र आत्मा को भी देता है। तो एक ऐसी सामर्थ मुझ में से निकलती है, वह मेरी सामर्थ नहीं होती, परंतु वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा होती है, जिसकी सामर्थ इतनी अद्भुत महान है कि वह एक परमाणु की शक्ति से भी ज्यादा सामर्थ्य होती है, जो हमें इस बुरे संसार से छुड़ाने में सहायता करती है। Thank God for reminding me of that. प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया।